Hi friends, welcome back to my channel, which is Pami Hindi Book Reader, the best reading channel. Call it yourself, affirm. So the book we were reading was The Gift of Life and The Game of Life and How to Play It. And the chapter is chapter 7. Let's start. Again, the intention is to bring a positive change in your life, and you just get your desires fulfilled, and may God always bless you. So let's start the chapter with a very good intention. Casting the burden, chapter 7. Impressing the subconscious. You know what is subconscious, right? When man knows his own powers and the workings of his mind, his great desire is to find an easy and quick way to impress the subconscious with good, for simply an intellectual knowledge of the truth will not bring results. In my own case, I found the easiest way is in casting the burden. Let's see what is casting the burden. A metaphysician once explained it in this manner. He said, "The only thing which gives anything weight in nature is the law of gravitation. And if a boulder could be taken high above the planet, there would be no weight in that boulder." And that is what Jesus Christ meant when he said, "My yoke is easy and my burden is light." अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको. He had overcome the world vibration and functioned in the fourth dimensional realm. फोर्थ डायमेंशनल रेल्म आपको पता ना हो तो हमारे पैरेलल एक दुनिया है जिसमें कि सब कुछ जो आप सोच रहे हो पॉसिबल वो हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ डायमेंशनल रेल्म, वेयर देयर इज ओनली परफेक्शन, completion, life and joy. He said, "Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light." ये बाइबल का वर्स है फिर से. We are also told in the 55th Psalm to cast the burden upon the Lord. अपना बोझ भगवान के ऊपर डाल दो. Many passages in the Bible state that the battle is God's, not man's. जो लड़ाई है वो भगवान की है, not हमारी. And that man is always to stand still and see the salvation of the Lord. और इंसान को खाली देखना है salvation of the Lord. This indicates that the superconscious mind or Christ within, superconscious mind मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा, वो सुपर कॉन्शियस माइंड भगवान जिसको हमारे अंदर जो होता है, आत्मा परमात्मा जिसे बोलते हैं, क्राइस्ट विद इन, इज द डिपार्टमेंट विच फाइट्स मैंस बैटल एंड रिलीव्स हिम ऑफ बर्डन. जो इंसान की लड़ाइयाँ लड़ता है और उसको उसके बर्डन से आज़ादी दिलाता है. वी सी देयरफॉर दैट मैन वायलेट्स लॉ इफ ही कैरीज अ बर्डन, and the burden is an adverse thought or condition, and this thought or condition has its root in the subconscious. तो बोल रहा है कि मैन जो है वो वायलेट करता है लॉ का कि वो बर्डन को कैरी करता है. कास्ट योर बर्डन मतलब अपना जो आपका बर्डन है वो उस ईश्वर को दे दो, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को दे दो. आप उस पर काम मत करो. अपना जो भी बर्डन है आप गो टू द गॉड एंड गिव इट टू हिम दैट please handle this. It seems almost impossible to make any headway directing the subconscious from the conscious or reasoning mind, as the reasoning mind, the intellect, is limited in its conceptions and filled with doubts and fears. लेकिन जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमें इतनी सारी रीजनिंग देता है, वो इतना इंटेलेक्ट अपना दिखाता है कि वो फियर और डाउट से भरा होता है, तो वो कोई बर्डन अपना कास्ट करना ही नहीं देता. वो हमेशा यही सोचता है नहीं ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा. वो फियरलेस नहीं कर पाता है खुद को कि चलो लेट्स गिव दिस थिंग टू गॉड एंड ही इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. हाउ साइंटिफिक it then is to cast the burden upon the superconscious mind or Christ within,
where it is made light or dissolved into its native nothingness. For example, a woman in urgent need of money, एक औरत को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मेड लाइट अपॉन द क्राइस्ट विद इन, उसने अपने अंदर जो क्राइस्ट विद इन थी उस पर लाइट डाला, द सुपर कॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर जो है उसको सुपर कॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं, आत्मा पर आत्मा का अंश भी बोल सकते हैं। और इसमें बोलते हैं कि मेरी इमेज में जो बने हो तुम, जो कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने अपनी इमेज में बनाया इंसान को, लाइक इफ़ यू आर क्रिश्चियन, यू आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, विद अ स्टेटमेंट। तो उस औरत की जो कहानी चल रही है, आई कास्ट दिस बर्डन ऑफ लैक ऑन द क्राइस्ट विद इन। ये जो लैक की फीलिंग है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो आई कास्ट दिस बर्डन ऑफ लैक। अगर पैसे नहीं है तो कौन सी फीलिंग आती है? लैक की फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग को वो कह रही है, आई एम हैंडिंग दिस ओवर टू गॉड विद इन और क्राइस्ट विद इन एंड गो फ्री टू हैव प्लेंटी। मैंने वो जो लैक वाली फीलिंग है वो क्राइस्ट विद इन को दे दी और आई हैव प्लेंटी, मेरे पास तो बहुत है। द बिलीफ इन लैक वॉज हर बर्डन, द बिलीफ इन लैक वॉज हर बर्डन, ओके। एंड एज शी कास्ट इट अपॉन द सुपर कॉन्शियस विद इट्स बिलीफ ऑफ प्लेंटी, और जब उसने वो कास्ट कर दिया सुपर कॉन्शियस पे प्लेंटी के बिलीफ के साथ, एन एवलांचे ऑफ सप्लाई वॉज द रिजल्ट। एकदम उसके पास इतना सारा आ गया जो रिजल्ट हुआ। एवलांचे मीन्स बहुत सारा, एकदम से बाढ़ आ जाना। वी रेड द क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, वी रेड द क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, जो हमारे अंदर जो भगवान है वो होप ऑफ ग्लोरी है। अनदर एग्जाम्पल, one of my students had been given a new piano, okay, and there was no room in her studio for it until she had moved out the old one. She was in a state of perplexity. She wanted to keep the old piano but knew of no place to send it. She became desperate as the new piano was to be sent immediately. In fact, was on its way with no place to put it. She said it come to her to repeat, I cast this burden on the Christ within and I go free. एक स्टूडेंट था, उसको पियानो मिल रहा था नया, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक पियानो था और उसके घर में जगह नहीं थी। बहुत ही परप्लेक्स हो गया कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तो उसने बोला, प्रेयर की, शी सेड इट केम टू हर टू रिपीट कि आई कास्ट, मैं ये बर्डन क्राइस्ट विद इन में देता हूँ और मैं टेंशन फ्री हो गया। मुझे नहीं पता इस पियानो का क्या होना है, मेरे को नहीं पता। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर हर फोन रैंग, थोड़ी देर बाद उसका घंटी बजी, एंड अ वुमन फ्रेंड आस्क इफ शी माइट रेंट हर ओल्ड पियानो, कि क्या वो अपना ओल्ड पियानो मुझे रेंट कर सकती है। एंड इट वॉज मूव्ड आउट अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर द न्यू वन अराइव्ड, और वो निकला जैसे ही उसका नया वाला पियानो आने वाला था, उससे थोड़ी देर पहले उसका पुराना पियानो वो लेडी लेके चली गई। तो इसका मतलब है उसने अपना जो बर्डन कास्ट किया वो अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को किया या क्राइस्ट विद इन को किया। आई न्यू अ वुमन हुज बर्डन वॉज रिजेंटमेंट, उसको किसी से बदला लेना था। शी सेड आई कास्ट दिस बर्डन ऑफ रिजेंटमेंट ऑन द क्राइस्ट विद इन। अब उसको किसी से जो भी था, कुछ प्रॉब्लम रही हो, जो भी होता है, तो उसको रिजेंटमेंट लेनी थी उस बंदी से। तो उसने क्या कहा कि मैं ये जो बोझ है रिजेंटमेंट का, बदले की भावना का, ये मैं अपने क्राइस्ट विद इन को देती हूँ और मैं फ्री हो जाती हूँ। एंड आई गो फ्री टू बी लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी, और मुझे बस लविंग, हारमोनियस और हैप्पी रहना है। द अलमाइटी सुपर कॉन्शियस फ्लडेड द सबकॉन्शियस, अलमाइटी सुपर कॉन्शियस ने क्या किया? flooded the subconscious mind को with love and her whole life was changed. For years, resentment had held in her a state of torment and imprisoned her soul. उस फीलिंग ने उसकी सोल को एकदम बंद करके रखा हुआ था, और जब उसने ये किया तो वो फ्री हो गई। शी वॉज फुल ऑफ लव, हारमोनियस and good thoughts. The statement should be made over and over and over, sometimes for hours at a time. ऐसी जो भी स्टेटमेंट आपको बोलनी है वो बार बार बोलनी है, साइलेंटली और ऑडिबली। अपने मन में भी बोल सकते हो और लाउडली भी बोल सकते हो, विद अ क्वाइटनेस बट डिटर्मिनेशन। अपने शांति से भी बोल सकते हो, लेकिन फुल डिटर्मिनेशन से। जब एक ही बात को आप रिपीट करोगे, वो करना है आपको।
I have often compared it to winding up a Victrola. We must wind ourselves up with spoken words. I have noticed in casting the burden, after a little while, one seems to see clearly. It is impossible to have a clear vision while in the throes of carnal mind. Doubts and fear poison the mind. Doubt और fear हमारे mind को poison करते हैं and body and imagination runs a riot, attracting disaster and disease. और क्या होता है, माइंड एंड बॉडी इमेजिनेशन करता है, रन्स राइट, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी हम लोग इमेजिन करते हैं जो कि अट्रैक्ट किया करता है, डिजास्टर और डिसीजेस को अट्रैक्ट कर लेता है. इंस्टेडली रिपीटिंग द अफर्मेशन, अपना धीरे धीरे अफर्मेशंस को रिपीट करो. आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड गो फ्री. आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड गो फ्री. The vision clears, and with it a feeling of relief, and sooner or later comes the manifestation of good, be it health, happiness or a supply. आप यही अपनी affirmation करते रहो. I cast this burden on Christ within and go free. और इसको आपको बार बार बोलना है, और आज नहीं तो कल आपको manifestation होगी, good, health, happiness or supply, whatever you needed, that will come to you. One of my students once asked me to explain the darkness before the dawn. कि अब ये ऐसे क्यों बोलते हैं कि बहुत गहरी रात होती है उजाले से पहले. I referred in a preceding chapters to the fact that often before the big demonstration everything seems to be wrong. जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उससे पहले सब कुछ गलत दिखता है. And deep depression clouds the conscious mind. और जो डीप बहुत ही ऐसे गलत थॉट आ जाते हैं, एकदम हम घिर जाते हैं कि अरे सब कुछ गलत हो गया. It means that out of the subconscious are rising the doubts and fears of ages. These old derelicts of the subconscious rise to the surface to be put out. ये होता क्या एक्चुअली, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नीचे एकदम छुपे होते हैं सरफेस पे, जो चीज़ें डाउट, फियर या whatever depression, they come out on the surface. It is then that man should clap his cymbals like Jehoshaphat and give thanks that he is saved, even though he seems surrounded by the enemy. The situation of lack or disease, उसको enemy बोला है. The student continued, how long must one remain in the dark? उसने बोला कितनी देर तक ये चलता है darkness वाला phase. And I replied, until one can see in the dark, तब तक जब तक वो darkness में भी light नहीं देखता है. And casting the burden enables one to see in the dark. और जब हम cast कर देते हैं अपना burden, that enables us to see in the dark. In order to impress the subconscious, active faith is always essential. In order to impress the subconscious, active faith is always essential. Active faith हमेशा होना चाहिए आपको. Active faith, ये नहीं आज faith है कल नहीं है परसों है तरसों नहीं है. Active faith, always faith. Faith without works is dead. Faith without works is dead. Faith के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा. In these chapters, I have endeavored to bring out this point. Jesus Christ showed active faith when he commanded the multitude to sit down on the ground before he gave thanks for the loaves and the fishes. I will give another example showing how necessary this step is. In fact, active faith is the bridge over which man passes to his promised land. ये बाइबल की स्टोरी है. Through misunderstanding, a woman had been separated from her husband. Misunderstanding की वजह से एक औरत अपने हस्बैंड से अलग हो गई, whom she loved deeply. He refused all offers of reconciliation and would not communicate with her in any way. उसने सारे रास्ते बंद कर दिए बातचीत करने के और बोला कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से इससे बात नहीं करूँगा. Coming into the knowledge of spiritual law, she denied the appearance of separation. वो स्पिरिचुअल लॉ में आई और उसने कहा कि कोई हमारा सेपरेशन है ही नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती. इन द स्पिरिचुअल लॉ शी मेड दिस स्टेटमेंट, देयर इज नो सेपरेशन इन डिवाइन माइंड. कोई हमारा सेपरेशन नहीं है डिवाइन माइंड में. देयरफॉर I cannot be separated from the love and companionship which are mine by divine right.
तो मैं कैसे अलग हो सकती हूँ लव एंड कंपेनियनशिप से, जो डिवाइन राइट है मेरा. शी शोड एक्टिव फेथ बाय अरेंजिंग अ प्लेस फॉर हिम एट द टेबल एवरी डे. उसने क्या किया, टेबल पे उसकी एक जगह बनानी शुरू की कि यहाँ पे वो बैठा है. देयर बाय इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस विद अ पिक्चर ऑफ हिज रिटर्न. ओवर अ ईयर पास्ट बट शी नेवर वेवर्ड एंड वन डे ही वॉकड इन. तो उसने 1 साल तक टेबल लगाई अपने डाइनिंग टेबल पे अपने हस्बैंड के लिए, और मतलब इमेजिन किया कि ही इज़ सिटिंग देयर एंड ही इज़ ईटिंग विद द पिक्चर ऑफ हिज रिटर्न. वो 1 साल निकल गया बट शी नेवर वेवर्ड, लेकिन उसने हार नहीं मानी. एंड वन डे ही वॉकड इन, और एक दिन वो उसको दिखा आता हुआ अंदर. द सबकॉन्शियस माइंड इज ऑफ्टन इम्प्रेस्ड थ्रू म्यूजिक. वाओ. म्यूजिक हैज़ फोर्थ डायमेंशनल क्वालिटी एंड रिलीज द सोल फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट. ओके, म्यूजिक जो है ना वो सोल के इम्प्रिजनमेंट से बाहर निकलता है. इट मेक्स वंडरफुल थिंग्स सीम्स possible and easy of accomplishment. I have a friend who uses her Victrola daily for this purpose. कोई इंस्ट्रूमेंट होता है. It puts her in a perfect harmony and release the imagination. Okay, वो जब वो प्ले करता है तो परफेक्ट हारमोनी में हो जाता है और इमेजिनेशन कर पाता है. Another woman often dances while making her affirmation. एक और औरत है वो डांस करती है जब वो अफर्मेशंस बोलती है. द रिदम एंड हार्मनी ऑफ म्यूजिक एंड मोशन कैरी वर्ड्स फोर्थ विद ट्रिमेंडस पावर. उनमें बहुत ही पावर हो जाती है जब वो म्यूजिक और डांस के साथ अपनी अफर्मेशंस को बोलती है. द स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर ऑल्सो नॉट टू डिस्पाइज द डे ऑफ स्मॉल थिंग्स. Invariably, before a demonstration come signs of land. Before Columbus reached America, से पहुँचने से पहले कोलम्बस ही सॉ बर्ड्स एंड ट्विग्स. उसने क्या देखी, बर्ड्स और ट्विग्स देखी जब वो अमेरिका पहुँचने वाला था कोलम्बस. वी शोड हिम लैंड वॉज नियर. उससे उसे क्या पता चला कि बस लैंड पास ही है. सो इट इज़ विद अ डेमोन्स्ट्रेशन, बट ऑफ्टन द स्टूडेंट मिस्टेक्स इट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन itself and is disappointed. For example, a woman had spoken the word. एक वुमन ने वर्ड क्या बोला, for a set of dishes. For example, a woman had spoken the word for a set of dishes. No long afterwards, a friend gave her a dish which was old and cracked. She came to me and said, "Well, I asked for a set of dishes, and I got all was a cracked plate." उसने बोला मैंने डिशेस मुझे चाहिए थी लेकिन मुझे क्या मिली, एक क्रैक्ड प्लेट. आई रिप्लाइड, द प्लेट वॉज ओनली साइंस ऑफ लैंड. इट शोज योर डिशेज आर कमिंग. लुक अपॉन इट एज अ बर्ड्स एंड सी वीड एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर द डिशेज केम. Continually making believing impresses the subconscious. If one makes believe he is rich and makes believe he is successful, in due time he will reap. अगर एक बिलीव करता है कि ही इज़ रिच, ही इज़ सक्सेसफुल, तो आज नहीं तो कल वो होगा ही, ड्यू टाइम. चिल्ड्रन आर ऑलवेज मेकिंग बिलीव एंड एक्सेप्ट ये बी कन्वर्टेड and become as little children, ye shall not enter the kingdom of heaven. For example, I know of a woman who was very poor, but no one could make her feel poor. She earned a small amount of money from rich friends who constantly reminded her of her poverty and to be careful and saving. उसको क्या बोलते थे कि तुझे हमेशा बचाना चाहिए. Regardless of their admonitions, she would spend all her earnings on a hat. एक हैट पे वो खर्चा कर देती थी और मेक समवन अ गिफ्ट, और किसी को गिफ्ट दे देती थी. एंड बी इन अ रेप्टूरस स्टेट ऑफ माइंड. हर थॉट्स वर ऑलवेज सेंटर्ड ऑन ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड रिंग्स एंड थिंग्स बट विदाउट एनवाइंग अदर्स. वो खाली उस पे उसका फोकस उसी पे रहता था, लेकिन वो किसी को जेलस या किसी से जेलस नहीं होती थी. She lived in the world of wonders and only riches seemed real to her. वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती थी. Before long she married a rich man. And the rings and things became visible. और जो वो सोचती थी वो सब कुछ उसको रियल में दिखने लग गया. I do not know whether the man was the divine selection,
बट ऑपुलेंस हैड टू मैनिफेस्ट इन हर लाइफ. अब मुझे ये नहीं पता कि वो बंदा उसके लिए सही था कि ना, लेकिन ऑपुलेंस जो उसने मैनिफेस्ट की वो आई. एंड शी हैड इमेज्ड ओनली ऑपुलेंस. उसने खाली ऑपुलेंस ऑपुलेंस और ऑपुलेंस देखा था. देयर इज नो पीस ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैन अंटिल ही हैज़ इरेज्ड ऑल फियर फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड. हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती जब तक कि फियर को इरेज ना किया जाए. फियर इज मिसडायरेक्टेड एनर्जी एंड मस्ट बी रीडायरेक्टेड और ट्रांसम्यूटेड इनटू फेथ. फियर को ख़त्म करना ही पड़ेगा. उसको डायरेक्टेड एनर्जी होती है तो उसको रीडायरेक्टेड करना पड़ेगा या ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा इनटू फेथ में. जीसस क्राइस्ट सेड, why are ye fearful, O ye of little faith? All things are possible to him that believeth. I am asked so often by my students, how can I get rid of fear? I reply, by walking up to the thing you are afraid of. जिस चीज़ से डरते हो उसी के पास जाओ. The lion takes its fierceness from your fear. लायन को कहाँ से इतनी fierceness आती है? क्योंकि हम डरते हैं. Walk up to the lion and he will disappear. Run away and he runs after you. उसके पास जाओ और वो चला जाएगा. अगर आप दौड़ोगे तो तुम्हारे पीछे भागेगा. I have shown in previous chapter how the lion of lake disappeared. Lion of lake disappeared हो गया when the individual spent money fearlessly, showing faith that God was his supply and therefore unfailing. Many of my students have come out of the bondage of poverty and are now bountifully supplied through losing all fear of letting money go out. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पॉवर्टी से बहुत ही डरे हुए रहते हैं, लेकिन नाउ दे बाउंटीफुली सप्लाइड हैं एंड फियर ऑफ लेटिंग गो ऑफ मनी से अब उनका कोई वास्ता नहीं है. द सबकॉन्शियस इज इम्प्रेस्ड विद द ट्रूथ दैट गॉड इज द गिवन. The subconscious is impressed with the truth that God is the giver and the gift. God ही है जो गिवर है, जो हर चीज़ हमें वही प्रोवाइड कर रहा है. Therefore, as is one with the giver, he is one with the gift. जो भगवान के साथ है उसके वही गिवर है और उसी को गिफ्ट मिलेंगे. A splendid statement is, I now thank God, the giver, for God the gift. आई नाउ, तो कह रही स्टेटमेंट क्या देनी चाहिए? स्प्लेंडेड स्टेटमेंट. आई नाउ थैंक गॉड द गिवर फॉर गॉड द गिफ्ट. मैन हैज सो लॉन्ग separated himself from his good and his supply through thoughts of separation and lack, and that sometimes it takes dynamite to dislodge these false ideas from the subconscious, and the dynamite is a big situation. We see in the foregoing illustrations how the individual was freed from his bondage of showing fearlessness. Man should watch himself hourly to detect if his motive for action is fear or faith. चूज ये दिस डे whom shall we serve, fear और faith. हम किसको सर्व कर रहे हैं? फियर को सर्व कर रहे हैं या फेथ को सर्व कर रहे हैं? Perhaps one's fear is of personality, then do not avoid the people feared. Be willing to meet them cheerfully and they will either prove golden links in the chain of one's good or disappear harmoniously from one's pathway. Perhaps one's fear is of disease of germs. जैसे इसमें अब एग्जाम्पल दिए हैं कि किसी का फियर है, उसकी पर्सनैलिटी का फियर है, तो देन डू नॉट अवॉइड द पीपल फियर्ड. बी विलिंग टू मीट दैम चेयरफुली. लोगों से मिलो जुलो. इधर प्रूव गोल्डन लिंक्स इन द चेन ऑफ वंस गुड और डिसअपियर. वो लोग या तो उसके साथ रहेंगे या फिर वो डिसअपियर हो जाएंगे उसके पाथवे से. परहैप्स क्या पता किसी का फियर हो डिसीज ऑफ और जर्म्स का फियर हो, देन वन शुड बी फियरलेस एंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ जर्म लेडन सिचुएशन. उसको फियरलेस लेना चाहिए जर्म लेडन सिचुएशन में एंड ही वुड बी इम्यून हो जाएगा वो. वन कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट जर्म्स वाइल वाइब्रेटिंग एट द सेम रेट एज द जर्म्स. वो कह रहे हैं आपको जर्म्स तभी पकड़ेंगे जब आप उस लेवल पे वाइब्रेट करोगे जहाँ पे जर्म्स हैं.
एंड फियर, आपको डर होगा, ड्रैग्स मैन डाउन टू द लेवल ऑफ द जर्म। और इंसान का जो फियर होता है वो ड्रैग्स डाउन कर देता है उसको लेवल ऑफ जर्म, और वो जर्म उसके साथ चिपक जाते हैं। ऑफ कोर्स द डिसीज लेडन जर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कार्नल माइंड। ऑफ कोर्स हम देखते हैं और हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कहता है अरे जर्म्स हैं, और वो बोलता है कि हम बीमार हो सकते हैं। एज ऑल थॉट्स मस्ट ऑब्जेक्टिफाई, जर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सुपर कॉन्शियस और डिवाइन माइंड। जर्म्स जो हैं वो है ही नहीं डिवाइन माइंड में। देयर फोर आर द प्रोडक्ट ऑफ मैंस वेन इमेजिनेशन। इसका मतलब है जो जर्म्स हैं वो इंसान की वेन इमेजिनेशन है, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड में जो गॉड का माइंड है, जो डिवाइन माइंड है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मैंस रिलीज विल कम व्हेन ही रियलाइजेस देयर इज़ नो पावर इन एविल। जैसे ही वो सोचेगा ना कि कोई पावर ही नहीं है ईवल में, कुछ ऐसा होता ही नहीं है, कुछ ऐसा हार्मफुल होता ही नहीं है, तो उसको कोई हार्म होगा ही नहीं। द मटीरियल वर्ल्ड विल फेड अवे एंड द फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ द वंडरस, विल स्विंग इन टू मैनिफेस्टेशन। जब वो इस सिचुएशन में आ जाएगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड उसके सामने आ जाएगा जिसमें कि उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। And I saw a new heaven and a new earth, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर 7, कास्ट योर बर्डन, जिसका कि मेन ये था कि आपकी जो भी बर्डन है वो आप कास्ट अवे कर दो कि प्रभु ये आप संभालो इसको। और मैं तो बस उसका ऑपोजिट सोचो, जैसे कि बहुत डिसीज़ है तो सोचो कि मैं तो बस एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर पैसे की कमी है तो बोलो कि अरे मैं तो बहुत अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तो वो है कास्ट योर बर्डन, कि आपकी अंदर की जो भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो गॉड के ऊपर छोड़ दो और उसका ऑपोजिट आप उस चीज़ को एंजॉय करो, तो आपकी लाइफ में वही अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आप अगर उसी अपने एक छोटे से जो आपने एक कुकून बना लिया उसी में रहोगे कि अरे यार ये हो गया ये हो गया, दिन रात अगर आप उसी में रहोगे तो फिर तो कुछ होगा ही ना, नए न्यूरॉन्स न्यू पाथवेज तो बनेंगे ही नहीं आपके। इसलिए आपको अपनी सिचुएशन खुद चेंज करनी पड़ेगी, कोई और मसीहा नहीं आएगा, आपको अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप यू एन्जॉयड माई रीडिंग, और आई होप कि आपको थोड़ी सी कुछ ग्रास्प, कुछ समझ आया होगा चीज़ें। और I hope this can make you a better person, or you can enjoy your life in a better way, or you can cast your burden. So yeah, that was my intention. So thank you so much for listening. आप लोगों के साथ मैं भी day by day grow कर रही हूँ। And if you want to like my video, you can like my video. If you don't want to like my video, so it's okay. So yeah, you just have a great time, and thanks for listening again. Thank you so much. Bye bye. Ciao.